اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے العظم ٹورز اینڈ ٹریولز۔ آداب دوستو، میں ہوں یم واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ 11 بجے 11 خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ سے اب کیا کہوں، یہاں مودی جی من کی بات کر لیتے ہیں لیکن اسے کوئی سنتا نہیں ہے، کیونکہ اس میں سوائے جھوٹ اور لفاظی کے کچھ نہیں ہوتا۔ خود کو امن کا پیامبر اور انسانیت کا علمبردار کہنے والے مودی جی ان دنوں خاموش ہیں، بالکل خاموش، کسی بھی سوال کا جواب بالکل نہیں دیتے۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں۔ کبھی سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور خود اب لب کشائی سے گریز کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں مسلمانوں اور دلتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ جب سے دوبارہ یوگی وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ریاست میں بلڈوزر پر بحث عام ہو گئی ہے۔ بے اعتمادی اور نفرت نے یہاں برسوں کے رشتوں اور بھائی چارے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ زعفرانی ذہن رکھنے والے تربیت یافتہ دہشت پسندوں کو میں نے دیکھا ہے یو پی میں کس طرح ان کی پیاسی بھیڑ بغیر کچھ سوچے سمجھے مسلمانوں پر حملے کرتے ہوئے سب کچھ برباد کر دینے پر تلی تھی۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں جہاں مسلمان کثرت سے رہتے ہیں، ان علاقوں میں آگ لگا دی گئی۔ جانے پہچانے لوگ بیگانے لگنے لگے تھے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اپنے گھروں کو مسمار ہوتے دیکھا۔ گھر کی یادیں، بچپن اور رشتے سب منو مٹی کے نیچے دب گئے تھے۔ یو پی کے کیا مسلمان، کیا دلت اور کیا کرسچن، سب ہنسنا بھول گئے۔ لیکن وقت تو گزرتا ہی ہے، زندگی پھر اپنی رفتار پر آ گئی، لیکن سینے میں، یادوں میں، دل میں کبھی نہ مٹنے والے داغ اور درد اب بھی اقلیتوں کو ڈراتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کیسے بدل گئی دنیا۔ کچھ خاموشیوں کو گونج لوٹا کر لے آتی ہے۔ جہاں کاغذ کا پرزہ اڑتا ہے تو طوفان سا سنائی پڑتا ہے۔ ایک طرف مودی جی ہندوستان کو وشو گرو کہتے ہیں، ایسے حالات میں انٹرنیشنل کرسچن کنسرن، جو کہ عیسائی مذہب کو ماننے والوں کا عالمی ادارہ ہے، جس کے صدر چیف کنگ نے کہا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں میں ریاست اتر پردیش پہلے نمبر پر آتی ہے۔ جہاں بی جے پی عوام کے درمیان نفرت پھیلاتے ہوئے اقلیتوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔ فتح پور میں کیے جا رہے اجتماع پر ہندوتوا کے ہجوم نے چرچ کا گھیراؤ کرتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس قسم کے اقدامات مذہبی آزادی کو روندنے اور ماحول کو خراب کرنے کے مترادف ہوتے ہیں، جبکہ ایسے اقداموں سے مزید تشدد کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یو پی میں ان دنوں لوگ خوفزدہ ہیں۔ زندگی ہے اس لیے موت سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے یو پی میں رپورٹنگ کے دوران دیکھا ہے کہ موت کبھی بھی قریب آ سکتی ہے، اس لیے زندگی کا ڈر رہتا ہے۔ دیکھا جائے تو زندگی اور موت دونوں کو انسانوں سے ڈر ہے۔ عقیدت، اعتماد اور محبت کی غیر موجودگی میں صرف خوف ہی خوف ہوتا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ لوگ آخر کس سے ڈر رہے ہیں؟ ایک جانی پہچانی غربت سے۔ آپسی محبت اب اختتام پذیر ہے۔ ایسے حالات میں اقلیتیں بھی تیار ہو سکتی ہیں۔ اگر جنگ ہی مسئلے کا حل ہے تو پھر جنگ ہوگی ضرور، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ مودی جی نہیں بتا سکتے، جو پرامپٹر کے بند ہونے کے بعد ہیبت کا شکار ہو گئے تھے، جن کے منہ سے چند الفاظ نہیں نکل پائے۔ ایسے افراد کو راج گدی حوالے کی جائے تو پھر دیش کی حالت غیر یقینی ہونی لازمی ہے، اور لوگ یہ شعر کہتے رہیں گے کہ ہمارا پیار بلی جن روایتوں کی چڑھا،
हमारा प्यार बली जिन रिवायतों की चढ़ा, मेरे समाज में वो भेदभाव है अब तक। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आज वफाकी काबीना का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर आजम हाउस में शुरू हुई इस मीटिंग में वफाकी काबीना ने माशी सूरत हाल, तवानाई और अमन व अमान पर तबादिले ख्याल किया। साथ ही साथ इस काबीनी इजलास में 7 रुकनी एजेंडे पर बात हुई है। रमजान करीम का दूसरा दहा जल्द ही इख्तिताम पजीर होने वाला है। ऐसे हालात में सऊदी अरब के शाही फरमान ने शहरियों में मसरत की लहर दौड़ा दी है। शाही फरमान के मुताबिक यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के लिए ईद की तातीलात 22 अप्रैल से शुरू होंगी, जबकि 21 अप्रैल काम का आखिरी दिन होगा। सऊदी माहिरीन फल्कियात ने ख्याल जाहिर किया है कि रवां साल रमजान करीम का महीना 30 दिन पर मुश्तमिल होगा। सभी इम्कान है कि शव्वाल का चांद 1 मई की शाम को दिखाई दे और ईद उल फित्र 2 मई पीर के दिन सऊदी अरब में होगी। आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है तो जरूर लगा लें, क्योंकि कोरोना वायरस अपनी शक्ल बदलकर बार बार लौट रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए हैं। पहले ही देश भर का सबसे फिजाई आलूदगी वाला शहर दिल्ली अब फिर एक मरतबा कोरोना की लपेट में है, जिसे देखते हुए शहरियों के लिए मास्क लगाना लाजमी करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर 500 रुपए जुर्माना आयद करने का ऐलान किया गया है। आप तो जानते हैं देश भर में मसाइल का अंबार है। रोजगार नहीं, महंगाई का अजदाह रोजाना लोगों को डस रहा है, निगल रहा है। ऐसे हालात में किसी रियासत में हिजाब तो किसी रियासत में लाउड स्पीकर पर चर्चा जारी है। दरी असना मुंबई महाराष्ट्र के साइबर सेल स्पेशल आईजी यादव ने कहा है कि लाउड स्पीकर तनाजे के बाद फिरका वाराना पोस्ट को सोशल मीडिया पर जबरदस्ती शेयर किया गया। पुलिस ने 12,000 पोस्ट्स को डिलीट करवा दिया और साथ ही साथ 300 FIR इस मामले में दर्ज की गई हैं। मोदी जी को देखना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, ये नारा हिंदुत्व शरपसंदों के हुजूम में कहीं खो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वजीर आजम को याद रखना चाहिए कि उनकी खामोशी एक दिन उन्हें जरूर खा जाएगी। दिल्ली जहांगीरपुरी में हुकूमत ने बिल्डोजर चलाते हुए मुसलमानों की इमलाक को तहस नहस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए इन्हिदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी। ताहम सुप्रीम कोर्ट की खिलाफवर्जी करते हुए हुकूमती चापलूस अफराद को आज सुबह के औकात यहाँ बुलडोजर दौड़ाते देखा गया। ताहम दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दरमियान में आते हुए तकरीबकारी की कार्रवाई को रुकवा दिया। ताहम इलाके में हालात पुरअमन है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स को यहाँ मुतय्यन कर दिया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी पार्टी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क में बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि गैर कानूनी कब्जा हटाने के नाम पर ये लोग यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में भी लोगों के घरों को मिसमार कर रहे हैं, जिन्हें कोई नोटिस भी नहीं भेजी गई ताकि वो अदालत तक ना पहुंच सकें। मजलिसी सरबराह ने मजीद लिखा है कि गरीब मुसलमानों को इसलिए सजा दी जा रही है कि उन्होंने नामसाइद हालात में भी जिंदा रहने का हौसला दिखाया। उन्होंने इस मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से उनका मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालिबा किया है। अगर आप समझते हैं कि देश में सिर्फ मुसलमान या ईसाई हिंदुत्व के जुल्म का शिकार हैं, तो आप गलतफहमी में मुब्तला हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज ऐसा कोई ना कोई वाकया पेश आता है जिसमें गरीब का इस्तेहसाल किया जाता है। 10 अप्रैल को यूपी के राय बरेली में 10वीं जमात के दलित तालिब इल्म को चंद शर्प पसंदों ने बिजली के तारों से झटका दिया और साथ ही साथ बेल्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे खूब पीटा गया। फिर उसे उनके पांव चाटने पर मजबूर किया गया। है ना यही मोदी का नया हिंदुस्तान, जहां दलितों को गुलामों से बदतर देखा जाता है। अब यह मामला सुर्खियों में आ गया है। भीम आर्मी सरबराह चंद्रशेखर आजाद ने इस वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस वाकये को देखने के बाद मुझे शर्म आती है, लेकिन हुकूमत को नहीं। और उधर कांग्रेस पार्टी की मकबूलियत में कमी ने अब सोनिया गांधी को परेशान कर रखा है।
ऐसे में सियासी तजुर्बेकार प्रशांत किशोर को पार्टी 2024 के लिए सियासी बिसात बिछाने की जिम्मेदारी सौंप रही है। इस सिलसिले में आज प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस पार्टी कायदीन ने तीसरी मुलाकात की और पार्टी को किस तरह मुस्तहकम किया जाए इस पर तबादिले ख्याल किया गया। ताहम अगली मीटिंग अगले माह उदयपुर में मुनक्कद करने का ऐलान किया गया। इस मौके पर राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, जगनमोहन रेड्डी, ममता बनर्जी और अमरिंदर सिंह के साथ काम किया है, जिनसे कांग्रेस पार्टी अब की बार खिदमात हासिल कर रही है। ये कोई हैरत की बात नहीं। ताहम 2024 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी को कितनी ऊंचाई पर ले जाएंगे, ये कहना कब्ल वक्त होगा। शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके KPHB पुलिस स्टेशन पर आज बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए TRS कोऑर्डिनेटर सतीश अरोड़ा को गिरफ्तार करने का मुतालिबा किया। बताया जाता है कि सतीश अरोड़ा पर जिनसी हरासानी का इल्जाम है, जिसे बुनियाद बनाकर बीजेपी रियासत तेलंगाना अपने वजूद का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है। ताहम पुलिस ने एहतजाजियों के साथ सख्ती से निपटते हुए उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने इफ्तार पार्टी का ऐलान कर दिया है और रियासत तेलंगाना में ऐसी सरकारी पार्टी पर बहस जारी है। ऐसे हालात में तेलुगु फिल्मों में सरगर्म सियासत में कदम रखने वाली सांवली सलोनी अदाकारा रियासती वजीर रोजा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि रियासत में सयाहत की तरक्की व तरवीज पर ध्यान दिया जाएगा और वो मरते दम तक वजीर आला के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी, क्योंकि अवामी फलाह और बहबूद ही उनका नसबुल ऐन है। दोस्तों, हमारी ये न्यूज आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, शब बखैर। अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स हुकूमत हिंद से रजिस्टर शुदा हज व उम्रा के मुक़द्दस सफ़र, तमाम एयरलाइंस डोमेस्टिक व इंटरनेशनल टिकट्स के लिए राब्ता करें। हर पल आपके साथ इत्मीनान बख्श सफ़र, मैन पावर कंसल्टेंसी, तजुर्बेकार अमले के साथ करता है आपकी भरपूर रहनुमाई।